میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے مگر میں نے ان کے وحالات اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے. آپ فرماتے تھے کہ رات کے 12 بجے تک آپ عبادت میں مشغول رہتے, اس کے بعد جب آپ فارغ ہوتے تب کھانا. کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دعوت ہوئی. پیری مریدی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پیر جو ہے تھوڑی دیر کر دیا تو مرید ناراض ہوتا ہے, کہیں کہ بتا پیر صاحب ہمارا خیال ہے ہم کو تکلیف ہو رہی, اپنے آرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کو جیل میں لکھ کر. لیکن میں باتیں تھوڑی طرف کر رہا ہوں مگر حقیقت یہ ہے, میری خانقاہ نہیں, میں بہت سی خانقاہوں میں گیا اور میں سب جگہ کے میں نے حال دیکھا ہے. لہذا پیر کو اپنی جو ہے طبیعت کے مطابق مت ڈھالو, بلکہ پیر کے طبیعت کے مطابق ڈھالو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دادا کی ایک جگہ دعوت, اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی, بڑی غریب تھی. اس نے دادا کی دعوت دیا اور دعوت دینے کے بعد کہا کھانے کے لیے. تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کیا, بچوں کو کہتے تھے جب تک نہیں کھانا جب تک کھانا جھوٹا ہو جائے گا. ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر وہ عقیدت رہتی تھی مرید کی کہ پہلے پیر کھائے گا پھر مرید کھائے گا. تو ہو گئے 12 بج گیا. تو جس کے گھر اس بڑھیا نے کھانا پکوایا تھا اس نے کہا کون سے تمہارے پیر صاحب رات کا 12 بج گیا, ہمارے بچے بھوکے ہیں. تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے, کہا کہ جاؤ دیکھ کر چاہ رہے اعظم گڑھ کی جلال گھاٹ کی مسجد میں میرے دادا تھے. اس شخص نے جب قدم رکھا ہے تو رکھنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ آپ کا جسم ایک سائڈ ہے, آپ کا سر ایک سائڈ ہے. وہ واپس سے آیا. اس کے بعد اس نے بتایا سارا ماجرا. اس نے کہا کہ جو ہے اس سے جس کے کیا کھانا پکوایا تھا, جو پیسے والا آدمی تھا, کہا بھائی تھوڑی دیر صبر کر لو, میرے پیر صاحب کی کچھ کیفیت لگتا ہے بدل گئی ہے. تو بہرحال تو مگر یہ چیزیں حاصل کہتے ہیں. میں بتاؤں آپ علماء سے سنتے ہیں, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو ہے انسان جب جو ہے وظائف پڑھتا ہے, جب مراقبہ کرتا ہے تو جو ہے مقام جو ہے ولایت پر فائز ہو جاتا ہے. مقامات ولایت کے بہت ہیں مگر اس کے لیے کیا ہے, شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے گا تب جا کر کے کامیاب ہو جائے گا. میں نے اپنے والد بزرگوار کی پوری زندگی میں نے دیکھا ہے. یہ میرے بادشاہ بھائی ہیں, میرا جو بچپنا تھا یہ جو میرے خاص سے کچھ نہیں 30-35 سال پہلے میری بہن کی نسبت ان سے منسوب ہوئی تھی. تو انہوں نے میرے والد بزرگوار کو بہت اچھے سے دیکھا. میں نے جو آپ کے ایگزام میں تھوڑا سا دیکھا ہے تو میں نے دیکھا کیا ہے, آپ کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہوتا تھا. اور کہتا ہے شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ چوہن گنت رفتن جانے پاک چٹا کمول تنسی آدمی تھا. یعنی جب پاک جان جانے کے رہا, یعنی جب مرنے کا وقت قریب ہو جائے تو کیا تخت پر مرنا کیا جواب. یہ جبہ دستار چیز میں بتاؤ, یہ جبہ دستار کچھ نہیں ہے اگر اپنے اندر ہنر نہیں ہے اور شریعت کی پاسداری نہیں ہوگی تو جبہ دستار رکھا رہے گا. بے شک بے شک بے شک. لہٰذا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریے گا. میں بتاؤں آپ ایک کام ایسا کیجیے, ایسا کام کیجیے جس سے جو ہے اگر کوئی غیر مرید دیکھے تو یہ کہے کہ جب اس مرید کا عالم یہ ہے تو پیر کا کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بتاؤں سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت عبدالرحمن جامی, جن کی کتاب شرح جامی درس نظامی میں پائی جاتی ہے. بہت پائے کے بزرگ ہیں. حالانکہ الحمدللہ میرا خاندانی جو سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ ہے, جو حضرت عبدالعزیز سے لے کر کے یہاں تک آیا. آخر میں میرے پردادا کے وصال, یہ علماء بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ نہیں جاتے, اس لیے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ میرے پردادا کے وصال ہوا. پھر ان کے چچا حضرت سید سرفراز علی, جب دادا کی عمر 8 سال کی ہوئی مرید ہوئے, خلافت ہو گئی مگر اسباق نہیں ہوئے. پھر آپ جا کے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سرکار سراہوسی سے مرید ہوئے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم آپ نے لیا ہے. اور حضرت سرکار سراہوسی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا سید محمد تقی جس مقام تک میں پہنچا ہوں, اگر کوئی اس مقام تک لے جانے والا بنے گا مجھ کو خبر کرنا, میں بھی آ کے ملنے کی تیار. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا کچھ جو ہے ذکر اگر ہونے لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے پیر ہم ہی ہیں. ایسا نہیں
यही सोचना चाहिए, हर बेशा गुमा की मबर खालिस शायद बिला खुस्ता बाशद। लिहाजा इस मर्द के चक्कर में मत रहिए कि हम ही सबसे बड़े पीर हैं, ये दुनिया खाली है, कहाँ कौन शेर निकल आएगा। हज़रत शेख सादी ने फरमाया है कि हर बेशा गुमा की मबर खालिस शायद की पिलक गुफ्ता बाजल, हर जंगल में गुमान मत कर के खाली होगा, कहीं चीता सोया हुआ। तो लिहाजा इस बात पे घमंड मत कीजिए। मैंने एक चीज देखा, मैंने वालिदे बुजुर्गवार के विसाल के बाद देखा, क्योंकि मैंने अपने वालिदे बुजुर्गवार से विसाल के बाद जब मैं दौरा करने लगा तो मुरीदीन वालिदे बुजुर्गवार के बहुत हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो मकामात बुलंद कर बताते थे कि मेरे मकाम ये है, मेरे मकाम ये है। वजह उसकी जानते क्या है? वजह उसकी ये है, लोग समझते थे ये तो अभी कल का सज्जादा बना है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, लोग सोचते थे अभी तो ये नए नए सज्जादा बने हैं, लिहाजा इनको मालूमात क्या होगी। मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता हूँ, मेरे वालिद बुजुर्गवार ने कहा था कि बेटा अगर कोई अपनी विलायत का डंका पीट ले, अपनी जबान से कहे वली नहीं हो सकता, वली वो होगा जो अपने विलायत के राज अपने सीने में उसके बाद मेरे दादा ने जो है सफर करना शुरू किया, सिलसिले नक्शबंदिया में आप मुरीद करते थे। हजरत आसाम की सरजमीन पर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम बगदादी तशरीफ लाते हैं, जो कि सिलसिले नक्शबंदिया में मुरीद करते थे, सिलसिले कादरिया में नहीं करते थे। आपने फरमाया कि बेटा सैयद मोहम्मद तकी, तुमने जो है सिलसिले कादरिया जो खानदानी निस्बत है क्यों छोड़ दी? आपने फरमाया कि हुजूर सिलसिले कादरिया की इजाजत तो खिलाफत थी मगर असबाक नहीं थे, इसलिए मैंने सरकार सराहोजी से सिलसिले नक्शबंदिया की तालीम हासिल किया। आप फरमाते हैं कि बेटा, वरना हर सिलसिले का उसूल है एक वक्त में एक ही सिलसिले में मुझ से कर सकते हैं। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि बेटा सैयद मोहम्मद तकी, मैंने तुमको सिलसिले कादरिया की असबाक मुकम्मल कराए और सिलसिले कादरिया की इजाजत तो खिलाफत भी अदा करता हूँ, और बस एक वक्त में सिलसिले कादरिया और सिलसिले नक्शबंदिया दोनों में मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जाने ये आसरिया की सरजमीन एक बहुत ही गुमनाम सरजमीन थी। मेरे परदादा लोग यहाँ थे, उसके बाद दादा का जमाना आया तो दादा ने जो है बड़ी मेहनत और मशक्कत की है मेरे लिए, उसके बाद इस बात को सींचा, उसके बाद जब जाने मेरे दादा का विशाल हुआ तो वालिद बुजुर्गवार ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि मैं बयान नहीं कर पाता हूँ अपने वालिद के साथ, क्योंकि जो है मैंने सुना है कि इतनी मेहनत और मशक्कत करते थे कि जो है 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्यों? कि रज़ हक की तलाश में लोगों को पहुंचाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कराने के लिए आप जाया करते थे, और उनका मकाम मर्तबा ये था कि आप फरमाते थे कि तमाम औलिया ने जिस रास्ते तक अल्लाह को पहुंचने के लिए रास्ता तय किया है, मैंने उसमें से कोई नहीं अख्तियार किया, मैंने अल्लाह तक पहुंचने के लिए सैयद मोहम्मद कासिम ने अलग रास्ता पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही चीज नहीं, आप जानते हैं जब मेरे वालिद बुजुर्गवार को मेरे दादा ने इजाजत और खिलाफत दिया था, आपने फरमाया था कि बेटा जिस मकाम तक मैं पहुंचा दिया, आगे जितनी मेहनत करोगे गाओगे। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि जो है कभी मेरे दादा मेरे वालिद का हाथ चूमने की कोशिश करते, कभी वालिद हाथ चूमने की कोशिश करते, मुरीदीन मौजूद थे, उसका मजमा था, आपने जो है लोगों के हाथ चूमने चाहते थे, मगर ये पहला इत्तेफाक था, एक पीर अपने मुरीद का हाथ चूमना चाह रहा था। और फरमाते हैं लोगों, जब खिरक़े खिलाफत से नवाजा है, ये जो खिरक़ा मैंने पहना है, जब इस वालिद बुजुर्गवार को पहनाया है तो पूरी जिंदगी मेरे दादा ने खिरक़ों को पहना नहीं है। और सिलसिले नक्शबंदिया की कादरिया की जो सलासिल के असबाब वज़ाइफ थे और जो गवाही होती थी, पूरी जिंदगी वालिद बुजुर्गवार किया करते थे। तो मैंने बयान किया हज़रत अब्दुल रहमान जामी सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत पाक के बुजुर्ग हैं। और हज़रत अब्दुल रहमान जामी कौन है? आप उलमा से पूछिएगा,
ऐसे आशिके रसूल कि जब कब्र रसूल पर जाते थे और वापस आते थे, सलाम करते थे, तो जवाब आता था बसलामत रवि व बसलामत बाज़, यानी कि सलामती के साथ जाओ, सलामती के साथ वापस आना। मगर हज़रत अब्दुल रहमान जब आखिरी सफर करने लगे हैं, रोज़े रसूल पर आखिरी हाजिरी दिया है, तो लोगों ने जो है जब आपने सलाम किया है तो जवाब आया है कि बस सलामत रही, बस सलामत बाज आए का जवाब नहीं आया। आप रोने लगते हैं, सारा पता आंसू जारी है। लोगों ने कहा कि अब्दुल रहमान क्यों रो रहे हो? अल्लाह के रसूल ने तो जवाब दे दिया है, कहा इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि बल्कि इसलिए रो रहा हूँ इन आंखों से गुंबद खजरा को देखना दोबारा नसीब नहीं होगा, इसलिए अब्दुल रहमान जामी रो रहा है। वो हजरत अब्दुल रहमान जामी एक महीना रोजा रहते थे, और एक दिन आप एक महीने के रोजा थे, आप एक होटल पे जाते हैं, कहते हैं कि मुझको जो है खाना दे दे। उसने कहा पहले पैसा जमा करो। बस ये दस्तूर नहीं है, पहले लोग जो है खाना देते फिर पैसा लेते हैं। हजरत अब्दुल रहमान जामी ने दे दिया, और देने के बाद आपने फरमाया कि जो है खाना दो। उसने खाना नहीं दिया, आप बड़ा नाराज हो कि पैसा भी ले लिया, नहीं दे रहा। आपने कहा तुमको मालूम नहीं मैं एक महीने से रोजे से हूं? तो उसने कहा कि आपने मुझ पर एहसान किया है, आपका नफ्स मोटा हो गया है। हजरत अब्दुल रहमान जामी जैसी शख्सियत जो है चौंक जाती है कि एक होटल में नौकरी करने वाला मुलाजिम मुझको कह रहा है कि मेरा नफ्स मोटा हो गया। आज हम लोग होते क्या तेरी औकात है कि तू हमको समझाएगा? हजरत अब्दुल रहमान जामी चौंके और कहा कि बताओ ये नफ्स दुबला कहाँ होगा? कहा चले जाओ ख्वाजा हजरत उबैदुल्लाह हिराल जो है उनके पास जाओ, वहां तुम्हारा नफ्स दुबला होगा। जब हजरत उबैदुल्लाह हिराल के पास आप पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद आप जब वहां गए हैं, तो हजरत उबैदुल्लाह हिराल को पता चल गया कि अब्दुल रहमान जामी आ रहे हैं। आपने अपने खादिम से कहा इनके लिए सोने के बर्तन में खाना लेकर के जाओ, क्योंकि मर्द के लिए सोना और रेशम हराम है। मगर हजरत अब्दुल रहमान जामी के सामने जब वो आता है, हजरत अब्दुल रहमान जामी देखते हैं, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मर्द के लिए जो सोने के बर्तन में खाना हराम है। तो उसने कहा, खादिम ने कहा अगर खाना हो खाइए, नहीं तो जाइए दूसरी जगह। तो आप समझ गए कि जो है गुदड़ी में लाल कैसे एक शेर है, शेर मुझको कम याद रहता है। तो कहा कि अच्छा लगता है कि इसमें कोई मसलहत है। आपने खाने को पत्थर पर रखा है, और रखने के बाद आपने जब लुकमा अंदर डाला है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मेरी निगाहें पहुंच गई है। अब्दुल रहमान जामी है, मगर आपने भी जो है पीर की तलाश किया है। और हजरत बायजीद ने फरमाया कि जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका पीर इब्लीस हुआ करता है। लिहाजा आप मुरीद होइए तो किसी अच्छे पीर से मुरीद हो जाइए जो शरीयत मुतहरा का पाबंद हो। ऐसे लोगों से ना होइए कि जो कहें कि अरे हम जो है नमाज मक्के में पढ़ लेते हैं, यहाँ तो पीठ पीछे की खबर ही नहीं रहती है, मक्के में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। मैं बताऊं अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर आप अपनाएंगे तो जाने दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। आपको बताऊं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस साल हजरत खदीजा का विसाल हुआ, हजरत जनाब अबू तालिब का जिस इंतकाल हुआ है, उस साल को अल्लाह के रसूल ने आमुल हुज़्न नाम रखा था। और बड़े आपके साथ जो है जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा कि जो है अब उस वक्त अबू लहब जो है वहाँ का सरदार बना, और जानते ही जो सरदार बनता है, जो सरदार कहता है वही सब मानी जाती है। सरदार ने कहा कि आज से तुम लोग मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ जो चाहो करो, हम बोलने नहीं आएंगे। लोग जो है आपके जान के दुश्मन हो गए। अल्लाह के रसूल ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए हैं, ताइफ में गए हैं, वहाँ पत्थरों की बारिश हो रही है, आपके पाँव मुबारक में जख्म हो जाते हैं, आपके नाले मुबारक खून से भर जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल जब वहाँ से वापस आने के लिए है, अभी आप वापस नहीं आए हैं, आप एक के पास जाते कहते मुझको पनाह दो। उसने कहा अगर हम आपको पनाह दे देते हैं, अगर आप नबी नहीं हुए तो हम फंस जाएंगे। कहा क्या दूसरे के पास कहा कि अगर हम आपको पनाह दे रहे हैं और अगर आप नबी हो गए तब भी फंस जाएंगे, लिहाजा ना हम आपको नबी मानते हैं ना हम आपकी नबूवत का इनकार करते हैं, मगर हम पनाह नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल जब वापस आने लगे, जब वहां पर से वापस आए हैं तो आप जो है मक्का की हुदूद के बाहर आते हैं। आपने एक सहाबी को भेजा और कहा कि जाके फला कुफार से कह दो कि मुझको पनाह दे दे। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। दूसरे के पास उसने कहा नहीं देगा।
मोतीम बिन अदी के पास भेजा, कहा कि मोतीम बिन अदी से कह दो कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मक्का में दाखिल होना चाहते हैं, अमान चाहते हैं। तो उसने कहा कि जाकर के कह दो हमने अमान दे दिया। उसने कहा कि जाकर दो। अल्लाह के रसूल ने सहाबी से कहा ऐसे नहीं, उससे कहो कि आकर के मुझको लेकर के जाए, वरना मालूम हो मैं मक्के के अंदर दाखिल होगा। इसने कह दिया मैंने कोई बात नहीं की थी, तो लिहाजा मेरे जो है मुझको लोग कत्ल कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया तो मोती बिन अदी अपने जवान बेटों के साथ आया, और जब सरकार को लेकर के जा रहा था तो कह रहा था लोगों को सुनो, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मान दिया है, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मान दिया है। जब इतना कहा सरकार वहां तशरीफ ले गए। उसके बाद जब जंग बद्र हुई है, देखिए हल जज़ाउल एहसान बिल एहसान का बदला क्या होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब जंग बद्र हुई, जब 70 जो कुफार और जो वहां पे जो कुफार कैद होकर के आए थे, तो लोगों ने कहा कि जो है मुझको ये छुड़ाने के लिए चाहिए, ये चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मोतीम बिन अदी जिंदा होता, हालांकि हालत कुफ्र में मरा था, आपने फरमाया अगर मोतीम बिन अदी जिंदा होता और वो सिफारिश करता, मैं सारे कुफारों को रिहा कर देता। इसी को कहते हैं हल जज़ाउल एहसान बिल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। आज यहाँ तो हाल ये है कि अगर हमने किसी को जो है कोई मशवरा दिया या किसी के साथ एहसान किया, वो समझता है कि हमने बेवकूफ बना लिया। ये मत सोचो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ एहसान किया है उसके एहसान को याद रखा करो। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, क्योंकि हालांकि हालत कुफ्र में वो था। मैं चाहता अल्लाह के रसूल ये जुमला न करवाते, मगर आपने ये ज़हन दिया यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, जिसने एहसान किया है उसका बदला एहसान याद रखना चाहिए और वक्त पड़े उसके बदले को चुका देना चाहिए। ये चीजें होना चाहिए। बहरहाल कहने का मकसद ये है इन बुजुर्गों की बारगाह में आप आए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये जो हम बाजार पे आना, चादर चढ़ाना और फातिहा करना मुस्तहब्बात में से, फर्ज व वाजिबात में से नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि यही सबसे बड़ा फर्ज है। ये फर्ज नहीं है, इसको करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे कोई गुनाह नहीं है। मगर अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हज व ज़कात अदा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। ये फर्ज है आप पर। लिहाजा आज से आप अहद करके उठिए कि हम लोग जब यहाँ से जाएंगे नमाज पंजगाना वक्त पर पढ़ेंगे। अगर कज़ा हो जाए तो घर में आकर के कज़ा नमाज अदा किया करो। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम नमाज पंजगाना के पाबंद हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मैं एक चीज मैं कहूँ कि मेरी खानकाह का ये सबसे पहले मैं करीब 10 साल से मैं कहता हूँ कि नमाज की पाबंदी कीजिए, और ऐसी पाबंदी कीजिए कि देखने वाला देखे तो ये कहे कि हाँ ये जो किसी खानकाह का मुरीद है, वहां से तालीम और तरबियत मिली है। ऐसा न कहने पे मजबूर कीजिए, कहे उनके खानकाह में ऐसा ही होता होगा। लिहाजा मुरीद का काम होता है पीर की इज्जत को बचाना, ये आपके जिम्मे करम में है। आप चाहे इस खानकाह को जरूर रखते हैं या चाहे जो करें, रब्बे करीम आपकी बारगाह में दुआ है इन मुरीदीन को अल्लाह सलामत रखे और इन्हें शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। यहाँ पर जितने लोग हैं सबको अल्लाह जो सलामत रखे और सबके कारोबार में दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए और हम सब लोग को सेहत कुल्ली अता फरमाए। और जो है दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कई साल पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, आप लोग इतनी दूर से आते हैं तो आप लोग मेला बना के मत घूमिए। या कमरों में सोना है तो 300-500 किलोमीटर से चल कर के क्यों आते हैं? इससे बेहतर अपने घर में ही फातिहा कर लिया कीजिए। यहाँ पे क्यों दिक्कत आप लोग उठाते हैं? अगर आए हैं तो जितनी तकरीबात है उसमें शिरकत कीजिए और साहिब मज़ार के फयूज़ व बरक़ात हासिल कीजिए, तो दुनिया कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा है इसमें किसी किस्म की कसदन या सहन कोई खता हुई हो, रब्बे करीम माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैहि इल्लल बलाग। अभी देखिए फातिहा होगा फिर सलाम होगा, ऐसा नहीं एक फातिहा उठ गया फिर दूसरा बैठे रहिए, जब हम खड़े होंगे आप भी खड़े होंगे।